Hello friends, welcome to the channel. Sorry for late video. The very basic or very important ingredient of my this analysis data was just published by the exchanges. So the video got delayed. So we'll try and wrap it up pretty fast. Won't take much of your time. Anybody interested who is watching. So what happened with it seems like a bullish harami, but not really. I mean, I won't call that because there's a big red candle and then we have got two strong bullish candle, and anyway we are trying to uh, reach to the upper end of the resistance. I mean 25 500 550 or 600 is the resistance from our side. So nifty, this is a doji candle, a green doji candle. Not fully convinced, not fully disheartened as well. So it does indicate that probably Nifty tomorrow might face some sort of resistance at 25 550 type levels. Okay, so this is how Nifty looks like. In case if we look at try an hourly basis, we'll see that there were numerous attempts on hourly basis for since 22nd January. There have been many attempts to violate this line, and incidentally we were not successful. Market was not successful. So I'll hold this line, or rather I'll try and stretch it a bit. Let us make it this way. Yeah, this is perfect. So Nifty closed at around 25,348, and it is trying to inch towards its resistance level, which I feel will be difficult at this go to go ahead and crack it. But we will see how it goes. Overall data along with the chart pattern and the data setup, it is looking kind of modestly bearish, right? But one thing to hold on is that we can see that on hourly basis they are double bottom, or I'll say that the multiple attempts to violate this line, but it failed to do that, and or try to inch up. पर निफ्टी यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा एक्सर्शन मुझे देखने को मिल रहा है, बिकॉज आई डोंट सी a very solid candle type. This was a pretty promising candle, but again since it is just nearing our resistance zone, so we'll try and keep a shy here. और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, हमें देखना पड़ेगा, विच आई एम नॉट वेरी श्योर दैट एटलीस्ट कल तो मार्केट मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल को तोड़ पाएगी. सो दैट इज आवर एनालिसिस. इन केस अगर ये यहाँ पे टूटता है देन इट माइट गो अप, बट मुझे लगता है कि ये कल नहीं टूट पाएगा क्योंकि डेटा भी ऐसा इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, नीचे का सपोर्ट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दैट वी हैव 25,100 2550 टाइप लेवल इज अ वेरी गुड सपोर्ट. दैट इज व्हाट इट अपीयर्स फ्रॉम द चार्ट. बैंक की बात करें, देखिए बैंक यहाँ पे आने के बाद एक हमारा एक जोन तो पार कर गया है रेजिस्टेंस का, दैट इज 59,500 एंड इट इज क्लोजिंग एट अराउंड 59,600 टाइप. ठीक है, तो हैविंग said that, I still am not I'm bullish, but I'm not very convincingly bullish right now at Bank Nifty for tomorrow. At least I'm telling you why. Around 59,000 or 60,000 के आसपास एक बहुत strong support resistance है, so which I'll probably wait for it to cover that. अगर देखिए, क्योंकि अगर हम ये कैंडल देखें ना, इस कैंडल का स्ट्रेंथ बहुत बड़ा है पर इसका विक बहुत ज्यादा है. So ये बड़ा बड़ा विक बनना इज नॉट वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट. इट डज शो सम मोमेंटम बट नॉट वेरी हेल्दी. अगर इसके जैसा पूरा फुल बॉडी होता ना, देन इट वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल, बट विक बनना इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी मच कॉन्फिडेंस. तो मुझे लगता है कि कल के मार्केट में थोड़ा सा एक्सॉर्शन इस पे भी हमें देखने को मिल सकता है. लेट अस क्विकली ट्राई एंड रीड द डेटा. द डेटा इज कर्सरली इंडिकेटिंग कि कल का हमारा मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ रह सकता है. ठीक है, क्योंकि लुकिंग एट द ओवरऑल इंस्टीट्यूशन एंड द रिटेल और द क्लाइंट डेटा. एफआईएस की बात करें तो एफआईएस के फ्यूचर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है. डीआईएस ने अपने थोड़े से लॉन्ग्स को कम किए हैं. प्रो हैज़ गॉन नेगेटिव. क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ने थोड़ा सा अपना लॉन्ग बढ़ाया है. कैश में एफआईएस ने आज 480 करोड़ की बाइंग की है और इंडेक्स में 1070 करोड़ का ओवरऑल बाइंग है. अगर मैं इंडेक्स वाइज देखूं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा बाइंग हुई है, निफ्टी में थोड़ा सा कम हुआ है. ठीक है, द ब्रेक डाउन. अब कैश में मैंने पहले वो दिया 480 करोड़ का, इन्होंने एक बाइंग की है. तो अब हमें क्या लग रहा है, लेट अस लुक एट द ओपन इंटरेस्ट सिचुएशन देयर. ओके नो, यहाँ पे देखिए, ये हमारे इस एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट है 3 तारीख का. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जाते जाते बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉल रेटिंग हुई है. और यहाँ पे भी 25,300 पे कॉल राइटर भी है, पुट राइटर भी है. मतलब अगर मैं इसका पीसीआर देखूँ तो पीसीआर इज अराउंड 0.97, माइल्डली बुलिश. यहाँ पे थोड़ा सा पुट राइटर ज़्यादा है कंपेयर टू कॉल राइटर, बट हाँ 0.97 इज कंसिडर्ड बुलिश एक्चुअली. थोड़ा सा बायस, थोड़ा सा इसका
बुलिशनेस की तरफ ज़्यादा है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो 25,000 पे बहुत स्ट्रांग पुट राइटर है, और यहाँ पे अगर आप 25,500, 25,300 और सिर्फ 25,500 पे काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो कल का रेंज मुझे लगता है एडवेस्ट 25,100 से लेकर के 25,500 के आसपास रह सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स्टैट्स। ठीक है, द पॉइंट दैट इज बॉदरिंग मी इज दिस, ये अगर आप देखिए तो दिस इज हमारा करेंसी है 192 का लेवल को ब्रीच कर गया है, which is not very positive for the market। ठीक है, this is something which is bothering and very disturbing as well। तेल की बात करें तो तेल का एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी अभी भी चल रहा है, इसने इस रेंज के ऊपर जाकर के अभी वो चल रहा है। टिल टाइम इट डजंट सेटल्स हियर, तब तक हमें देखना पड़ेगा। और इधर आप ये देख रहे हैं कि जैसा जियोपॉलिटिकल न्यूज हो रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दिस इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंस ओरिएंटेड, जहाँ पे ईरान की बात चल रही है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अब देखिए आज रात को फेड का डिसीजन आएगा ऑन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, पहली बात उसकी कमेंट्री क्या रहती है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड कि अगर आप ये देखें कि हमारा बजट का सेशन अभी शुरू होने वाला है, सो इट विल बी वेरी वेरी मच वाइटल। देखिए होता क्या है कि यूजुअली बजट के पहले एक प्री बजट रैली की तरफ हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा भी कोई डाउन साइड आएगा एक आध दिन का हो सकता है, लेकिन वो मेरे ख्याल से बिफोर बजट और पोस्ट बजट दे माइट बी सम रैली, क्योंकि पीपल आर एक्सपेक्टिंग टू थिंग्स। एक बात वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं एसटीटी जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स में कुछ कट हो सकता है, और गोल्ड विच इज वेरी प्राइमरी, तो उसमें भी शायद कोई इम्पोर्ट टैक्स वगैरह जो लगा है ना, उस पर कुछ एक चेंज आ सकता है। सो विच माइट बी पॉजिटिव फॉर ऑल द एसेट क्लासेस, दैट इज गोल्ड एंड इक्विटी। दैट इज जस्ट दैट इज a rumor or a talk about in the market, just a murmur in the market, जहाँ पे लोग ऐसे एंटिसिपेट कर रहे हैं। We do not know what will come, ऐसा होगा नहीं होगा, but these are the cursory talk that's going on there। तो ये इनका अगर इम्पैक्ट हुआ तो वन हैज टू बी वेरी मच। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल मुझे नहीं लगता वो, क्योंकि देखिए देयर इज अ वेरी स्ट्रांग इवेंट दैट इज बजट। वो बजट हमारा संडे को होगा, तो उस समय जब वो बजट होगा संडे को, मेरे ख्याल से मार्केट भी खुलेगा, ऐसा जैसा बातें न्यूज़ में आ रही हैं। सो प्रॉब्ली मार्केट्स आर गोइंग टू बी ओपन ऑन संडे व्हेन द बजट इज टेलीकास्टेड, सो वी विल बी एबल टू ट्रैक मार्केट देयर लाइव। तो उसके बाद जब ऐसा है तो बहुत ज़्यादा राउंड फ्लो मुझे दिखता नहीं है, पर हाँ कल के लिए बायसनेस हमारा नेगेटिव ही रहेगा, बिकॉज एवरीथिंग टुगेदर। अगर आप देखिए कि बजट में क्या होने वाला है, फिर यहाँ पे एक ईरान का भी एक सेशन आ रहा है जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ रहा है, थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म थोड़ा सा बढ़ रहा है। सो वी आर नॉट वेरी क्लियर ऑन दैट एंड ऑब्जर्विंग एवरीथिंग अलॉन्ग विद द डेटा सेटअप। तो मुझे लगता है कि शायद कल हमारा एक बायस नेगेटिव की तरफ हो। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द जोन्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय।